بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی نیوز چینل میں ستار لغاری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پہلے عرب امارات کی خبروں کی چند سرخیاں، اس کے بعد پھر ان کی تفصیل۔ دبئی ایئرپورٹ کو دوبارہ سے فعال کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ شارجہ 48 منزلہ ٹاور میں خوفناک آتش زدگی۔ ہماری نیکسٹ اپڈیٹ ہوگی، شارجہ میں تنخواہ نہ ملنے پر پاکستانی مشتعل ہو گیا، متعدد قیمتی گاڑیوں کے شیشے توڑ ڈالے۔ ہماری نیکسٹ اپڈیٹ ہوگی، پاکستان نے اماراتی ہوائی کمپنی کے طیارے کو ملتان میں لینڈنگ کی اجازت دے دی۔ ہماری نیکسٹ اپڈیٹ ہوگی، ملازمت کی تلاش میں امارات میں پھنسے پاکستانیوں کی تعداد 1100 ہو گئی۔ نیکسٹ اپڈیٹ ہوگی، خلیجی ممالک میں 1 لاکھ کے لگ بھگ پاکستانی پھنس کر رہ گئے، اور آخر میں بات کریں گے میں کرونا کی تعداد کتنا ہو گئی۔ پر یہ تھیں کچھ اہم ہیڈ لائن جو آپ کی خدمت میں ان کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں، اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں آج کی عرب امارات کی نیوز کی طرف۔ دبئی ایئرپورٹ کو دوبارہ فعال کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق عرب بزنس کلب کے صدر حمدان المرشدی کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ایک پوسٹ کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ دبئی ایئرپورٹ کو دوبارہ فعال کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں کئی تصاویر جاری کی ہیں جن میں دبئی ایئرپورٹ پر کرونا وائرس کے باعث احتیاطی تدابیر پر عمل کروانے کے لیے مختلف اقدامات دکھائے جا رہے ہیں۔ پوسٹ پر ایک صارف کی جانب سے کیے جانے والے سوال کے جواب میں حمدان المرشدی کا کہنا تھا کہ امکان ہے دبئی ایئرپورٹ سے بین الاقوامی پروازوں کا جلد دوبارہ آغاز ہو جائے گا، تاہم اس حوالے سے دبئی ایئرپورٹ حکام یا حکومت کی جانب سے تاحال کوئی واضح اعلان نہیں کیا جا رہا۔ یہاں یہ واضح رہے کہ کرونا وائرس کے باعث جہاں دنیا کے تمام ممالک کی فلائٹس آپریشن بند کر دیا تھا، وہیں اماراتی حکومت نے بھی مارچ کے ماہ میں ملک بھر کے تمام ایئرپورٹس پر کمرشل فلائٹ آپریشن بند کر دیا تھا۔ فرینڈ، اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ شارجہ 48 منزلہ ٹاور میں خوفناک آتش زدگی۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست شارجہ کی 48 منزلہ عمارت میں منگل کی رات خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ عرب نیوز نے شارجہ کی سرکاری میڈیا آفس کے حوالے سے بتایا کہ شارجہ کے علاقہ الہندہ میں واقع ایبکو ٹاور میں آتش زدگی سے 9 افراد زخمی ہو گئے۔ شہری دفاع کو رات 9 بجے آگ لگنے کی اطلاع ملی۔ فائر فائٹر فوراً ہی جائے وقوع پر پہنچے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق آگ عمارت کی 10ویں منزل پر لگی، جس نے دیگر منزلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شہری دفاع کی ایمرجنسی ٹیموں نے 1 درجن فائر انجنوں اور متعدد ڈرونز کی مدد سے کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ وائرل ہونے والی ویڈیو میں آگ سے لپٹی عمارت کی بلندی سے نیچے کھڑے گاڑیوں پر ملبہ گرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملبہ گرنے سے نیچے کھڑی گاڑیوں کو نقصان پہنچا، جبکہ آتش زدگی سے عمارت کا ایک حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ امارات کے اخبار دا نیشن کے مطابق ایبکو ٹاور کے قریب کم از کم 5 عمارتوں کے رہائشیوں کو بھی حفاظت کے پیش نظر وہاں سے نکالا گیا۔ ایبکو ٹاور میں رہائش پذیر افراد کو UAE ہلال احمر نے رہائش فراہم کی ہے۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ شارجہ میں تنخواہ نہ ملنے پر پاکستانی مشتعل اور متعدد گاڑیوں کے شیشے توڑ ڈالے۔ متحدہ عرب امارات میں اس وقت کورونا کے وبا کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے، جس کی وجہ سے کمپنیوں نے ہزاروں ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کر دیا۔ ایک اندازے کے مطابق حالیہ معاشی بحران کے باعث 20,000 پاکستانیوں کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں، جو امارات میں انتہائی پریشان پھر رہے ہیں اور فوری طور پر وطن واپسی کے منتظر ہیں۔ سعودی الاخبار المرصد کی جانب سے بتایا گیا کہ شارجہ میں مقیم ایک پاکستانی کارکن تنخواہ نہ ملنے پر شدید مشتعل ہو گیا۔ سڑک کنارے کھڑی متعدد لگژری گاڑیوں کے شیشے توڑ ڈالے، جس کے بعد گاڑی مالکان کا ہزاروں درہم کا نقصان ہو گیا۔ المرصد کے مطابق شارجہ میں رہائش پذیر ایک پاکستانی کارکن کو کمپنی کی جانب سے گزشتہ 3 ماہ کی تنخواہ کی ادائیگی نہیں کی گئی۔ پاکستانی کارکن کی جانب سے کئی بار تنخواہ کا مطالبہ کیا گیا، مگر کمپنی انتظامیہ کی جانب سے اسے تنخواہ کی مد میں رقم کی ادائیگی نہ کی گئی، جس پر پاکستانی کارکن پریشانی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور سڑک کنارے کھڑی متعدد گاڑیوں کے شیشے توڑ ڈالے۔ اس واقعے کی ویڈیو بھی سامنے آئی۔ ویڈیو بنانے والے نے پاکستانی کی جانب سے توڑ پھوڑ کا شکار ہونے والی گاڑیاں دکھائی ہیں، جو خاصی مہنگی معلوم ہوتی۔ ویڈیو بنانے والا کوئی عربی ہے، جس نے بتایا کہ ان گاڑیوں کے شیشے ایک پاکستانی
कारकुन तोड़ रहा है, जिसने 3 महीनों की तनख्वाह न दिए जाने पर यह हरकत की है। दूसरी जानब शारजा पुलिस की जानब से बयान सामने आया कि सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों की तोड़फोड़ करने वाले पाकिस्तानी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से इस खिलाफ कानून हरकत पर तफ्तीश जारी है। इसने ये इंतहाई इक़दाम क्यों उठाया? पुलिस तर्जमान के मुताबिक मुलजिम को जल्द इस्तगासा के हवाले कर दिया जाएगा। अदालत में जुर्म साबित होने पर इसे कई माह की कैद भुगतना पड़ेगी। इमाराती कानून के मुताबिक मुलजिम को गाड़ियों को होने वाले नुकसान भी भरना होगा। याद रहे कि कुछ अर्सा कबल दुबई में एक पाकिस्तानी ने नौकरी से निकाल देने पर इसे कार पार्किंग में तशद्दुद का निशाना बनाया था। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसका कहना था कि इसे नौकरी से निकालने के बाद इसके बकाया जात अदा नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से इसने इश्तियाल में आकर ये कदम उठाया। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। पाकिस्तान ने इमराती हवाई कंपनी के तैयारे को मुल्तान में लैंडिंग की इजाजत दे दी। तफसीलात के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे पाकिस्तानी को वापस लाने के लिए इमाराती हवाई कंपनी एयर अरेबिया के तैयारे को लैंडिंग की इजाजत दे दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शारजा से एयर अरेबिया की खसूसी परवाज 10 मई को 200 से ज्यादा पाकिस्तानी को लेकर मुल्तान पहुंचेगी। एयर अरेबिया ने खसूसी परवाज की मुल्तान एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए सिविल एविएशन को दरखास्त दी थी। तैयारे के अमले को जहाज से उतरने की इजाजत नहीं होगी। एयर अरेबिया का तैयारा मुल्तान से शारजा रवाना होगा। ख्याल रहे कि बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। PIA की गुज़श्ता परवाज 263 मुसाफिरों को लेकर लाहौर एयरपोर्ट पहुंची। मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के बाद करंटीना मराकज़ और प्राइवेट होटल्स में मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिरों को खसूसी बसों पर सवार करके करंटीना सेंटर और प्राइवेट होटल में मुंतकिल किया गया। करंटीना सेंटर में बैरून मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों का मुकम्मल कोरोना टेस्ट किया जाएगा। जिली इंतजामिया लाहौर की जानिब से मुसाफिरों को करंटीना सेंटर और प्राइवेट होटल में तमाम तर सहूलियत फराहम की जा रही है। इस्तांबुल से खसूसी प्रवास 270 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंचेगी। दूसरी जानब वज़ारत मनसूबाबंदी तरक्की इस्लाहात ने सरकारी शोबा के तरक्याती प्रोग्रामों में एविएशन डिवीजन के लिए मजमूई तौर पर अब तक 1 अरब 82 करोड़ 78 लाख रुपए के फंड जारी कर दिए। हुकूमत ने इस डिवीजन के तरक्याती कामों के लिए रवा माली साल के दौरान 2 अरब 58 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड मुख्तस किए थे। प्लानिंग कमीशन के जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हुकूमत ने इस्लामाबाद में कसानी डैम की तामीर के लिए 10 करोड़ और कराची मौसमियाती रडार की तनसीब के लिए 3 करोड़ रुपए समेत मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए फंड जारी कर दिए हैं। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुलाजमत की तलाश में इमारात में फंसे पाकिस्तानियों की तादाद 11,000 से बढ़ गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात पाकिस्तानी कौंसल जनरल अहमद अमजद अली ने बताया कि इस वक्त पाकिस्तान में 11,000 से ज्यादा ऐसे पाकिस्तानी हैं जो मुलाजमत की तलाश में विजिट वीजा पर यहाँ आए, अगर कोरोना के बायस सफरी पाबंदियों की वजह से वतन वापस नहीं जा सके और इस वक्त शदीद माली परेशानी का शिकार हैं। कौंसल खाने की जानिब से विजिट वीजा पर आए इन पाकिस्तानियों को खसूसी परवाजों से वापस भेजने में तरजीह दी जा रही है, जिसके बाद दूसरी बड़ी तरजीह उन्हें दी गई है जिन्हें हालिया बहरान के बायस नौकरियों से फारिग किया गया या फिर इन्हें बगैर तनख्वाह के छुट्टियां दी गई। इसके अलावा हमला खवातीन, शदीद बीमार अफराद और उन लोगों को भी तरजीह दी जा रही है जिनका पाकिस्तान में कोई करीबी रिश्तेदार इंतकाल कर गया। अहमद अमजद अली के मुताबिक अब तक पाकिस्तानी और इमराती एयरलाइन की खसूसी परवाजों के जरिए 4,500 पाकिस्तानी को वतन वापस भिजवाया जा चुका है। फौरी तौर पर वतन वापसी के लिए अब तक 63,000 पाकिस्तानियों ने दुबई के पाकिस्तानी कौंसल खाने में रजिस्ट्रेशन कराई है। रजिस्ट्रेशन करवाने वालों में ज्यादातर का ताल्लुक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से है। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वतन वापस आने वालों की बड़ी तादाद को करंटीना के सहूलियात की फराहमी है। PIA की 15 परवाजों के जरिए दुबई से 2800 पाकिस्तानी वतन वापस भिजवाए गए। इसके अलावा इमराती रियासतों की जानिब से जेलों में बंद 368 पाकिस्तानियों को भी माफी देकर रिहा किया गया था और इन्हें भी फौरी तौर पर वतन वापस भिजवाने का मसला दरपेश है। कौंसल खाने को सिर्फ PIA की फ्लाइट्स की तफसीलात और मुसाफिरों के बारे में इल्म होता है, जबकि इमराती एयरलाइन अपने ऑपरेशन की मालूमात फराहम नहीं करती। पाकिस्तानी कौंसल जनरल ने यकीन दिलाया कि दुबई से पाकिस्तान जाने वाली PIA की फ्लाइट्स में समाजी फासले की गाइडलाइन की मुकम्मल तौर पर पाबंदी की जा रही है। अब तक खसूसी परवाजों और कार्गो के जरिए 56 पाकिस्तानियों की मैयतें वतन वापस भिजवाई गई हैं। इन वफात पाने वाले पाकिस्तानियों में से कोई भी कोरोना से मुतासर नहीं हुआ था। अगले चंद रोज में मजीद मैयतें पाकिस्तान भिजवाई जाएंगी। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। खलीजी ममालिक में 1 लाख के लगभग पाकिस्तानी फंस कर रह गए। वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में 71,000 से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जो या तो बेरोजगार हो गए हैं या वीजे की मियाद खत्म होने की वजह से वतन वापस लौटना चाहते हैं। इसके अलावा उनमें छुट्टी के लिए आने वाले और जेलों से रिहा होने वाले कैदी भी
शामिल हैं। सऊदी अरब से वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों की कुल तादाद 16,000 के करीब है, जबकि कतर में इस वक्त 3,991 पाकिस्तानी मौजूद हैं जो कि वतन वापस आना चाहते हैं। इनमें से 691 अफराद बेरोजगार हुए हैं। वजारत के मुताबिक ओमान में कोरोना वायरस की वजह से 600 पाकिस्तानी बेरोजगार हुए और 1,000 से ज्यादा अफराद पाकिस्तान वापस वतन लौटना चाहते हैं। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानी में बहरीन में 387, कुवैत में 500, जबकि मलेशिया में 802 मौजूद हैं, जबकि इराक में ऐसे अफराद की तादाद 600 है। वजारत का कहना है कि जिन ममालिक से पाकिस्तानी वापस आना चाहते हैं, वजारत खारजा और वजारत समंदर पर पाकिस्तानी ने उनसे दरखास्त कर रखी है कि वो खुद को सफारत खाने के साथ रजिस्टर करवाएं ताकि उनका पता चल सके कितनी तादाद में है। इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक से 1 लाख पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने की जरूरत है। अब तक 18,000 पाकिस्तानी को वतन वापस लाया जा चुका है, जिनमें से 13,000 PIA जबकि 5,000 निजी फिजाई सर्विस के तहत पाकिस्तान पहुंचे। वजारत एविएशन के मुताबिक सऊदी अरब से 8,332 पाकिस्तानियों को अब तक वापस लाया गया, जिनमें अक्सरियती तादाद उम्रा ज़ायरीन की है। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात से 2,278, मलेशिया से 454, बरतानिया से 182, जबकि कनाडा से 138 पाकिस्तानियों को वापस लाया जा चुका है। इराक से 136, अजरबैजान से 125, नॉर्वे से 45, जापान से 51, थाईलैंड से 51, तुर्की से 197, इंडोनेशिया से 229, ऑस्ट्रेलिया से 208, जबकि जर्मनी से 38 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जा चुका है। वजीर आजम इमरान खान के मामले खसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फिकार के मुताबिक बैरून ममालिक में 1 लाख पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको वापस लाने के लिए फौरी इकदाम किए जा रहे हैं। इस तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए खसूसी परवाजों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA के अलावा पाकिस्तान ने दीगर निजी एयरलाइंस को भी पाकिस्तानी को वतन वापस लाने के लिए परवाजों को इजाजत दी है। तर्जमान PIA के मुताबिक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए परवाजें बढ़ाई जाएंगी। जुल्फिकार ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी से कहा था कि पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए हफ्ता में 2 परवाजें चलाई जाएंगी। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और हमारी ये इस बुलेटिन की आखिरी अपडेट है। मुत्तहिदा अरब अमारात 24 घंटे में मजीद 462 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई और मुतासरीन की मजमूई तादाद 15,192 हो गई, जबकि सेहतयाब मरीजों की तादाद 3,153 तक पहुँच गई। बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक वज़ारत सेहत ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रवां हफ्ते के दौरान 187 मरीज कोरोना से सेहतयाब हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात में 28,000 से ज्यादा अफराद के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। पर ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों शेयर करें। अगर अरब अमारात और सऊदी अरब की खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में, तब तक के लिए आपका भाई आपसे चाहेगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।